We shall continue by inviting from Team Microsoft Learn student ambassadors. They are our proud sponsors for our event, and without any further ado, I would like to invite him on stage. Thank you. The Student Ambassador community is a global community of like-minded students that share a passion for technology and for having an impact in the world. It's an amazing thing for people that both like social gatherings and in the same time they like tech communities. It's Microsoft helping us, helping folks around our campus. I wanted to improve my skills and I wanted to get connected with people that can help me do that. Best benefit is the access to MS Learn and LinkedIn Learning as well. You get an Azure subscription for tinkering around when you join the community and have completed your first milestone. You'll also get to be mentored by Microsoft employees. It's really a very wholesome experience where we're all just trying to help each other grow. I saw that people were having a lot of fun, but in the same time they were learning a lot of stuff. Everything that we have in the community is very inclusive and it welcomes everyone as they are. This is a great place to learn new skills, to connect with people, to create community, to help others. Students accomplish so much in this community. Not only do they build their own skills and a brand, but they create content, they run hackathons, they get mentorship, and they put that all on their resumes. And they get full-time jobs when they graduate. It's really amazing. Anything good that's happening in my career probably started with this program. Be sure to apply for it. You would definitely enjoy being a Microsoft Learn student ambassador. प्लीज़ फर्स्ट स्लाइड ओपन कर दो, नेक्स्ट स्लाइड कर दो, नेक्स्ट स्लाइड कर दो प्लीज, थैंक यू. First of all, it's a great pleasure to be in front of you all guys. We have such esteemed guests, Sir Hafiz Naeemur Rahman, and my teachers, my fellows, the youth, and their very caring parents. Assalamu alaikum to each and every one of you. So आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ. पिछली स्लाइड पे आ जाएं प्लीज़, जो हमारे टॉपिक की स्लाइड है. पिछली स्लाइड पे जो हमारे टॉपिक की स्लाइड है. एक और पहले बैक, इससे पहले टॉपिक की स्लाइड है. यस. सो आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग पाकिस्तान को किस तरीके से नेक्स्ट सुपर पावर बना सकते हैं. एंड इसके साथ मैंने लिखा हुआ है गारंटीड. सो दिस इज़ द वे वी कैन मेक पाकिस्तान द नेक्स्ट सुपर पावर. दिस इज़ द वे. सो नाउ अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम सैयद फसीउद्दीन है. And I am Gold Microsoft Learn Student Ambassador. Gold highest rank है जो कि Microsoft देता है किसी भी student ambassador को. Secondly, I am Microsoft Learn Student Ambassador Regional Lead for EMEA region as well. EMEA हम लोग कहते हैं यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका को. इसके अलावा मैं Microsoft Imagine Cup 2023 का नेशनल विनर रहा हूँ. Microsoft Imagine Cup एक हर साल कंपटीशन होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स लेकर जाते हैं. उसके अंदर हमने नेशनल लेवल के ऊपर भी फर्स्ट पोजीशन ली थी. एंड देन जब हम लोग रीजनल लेवल पे नीचे थे तो उस वक्त भी हमने फ़र्स्ट पोजीशन ली थी. इसके अलावा मेरी टीम जो है वो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इनोवेशन डे हैकाथॉन के अंदर भी एक ऑनरेबल मेंशन का अवार्ड ग्रैब कर चुकी है. सो विदाउट फर्दर अडू अब हम लोग जो है डिस्कशन पे आ जाते हैं. सो आई वांट के ये हमारा जो सेशन है बनिस्बत ये कि सिर्फ मैं बोलता रहूँ, ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो. सो मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मच डज़ अ फ्रीलांसर अर्न. सो मैं चाहूँगा कि हमारे जो माइक्स हैं वॉलंटियर्स जो हैं ऑडियंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ये भी एक माइक है.
थैंक यू सो मच। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि हाउ मच डज अ फ्रीलांसर अर्न? फ्रीलांसर की एक एवरेज अर्निंग क्या होती है? कौन बताना चाहेगा? कोई इनपुट देगा इसके अंदर? प्लीज़ उनको माइक दे दीजिए। वहाँ पे एक सिस्टर है, उनको प्लीज़ माइक दे दीजिए। बोलो। डिपेंड्स। कौन इट डिपेंड्स। सो हाउ मच डज अ फ्रीलांसर अर्न? इट डिपेंड्स ऑन देयर स्किल। डिपेंड करता है कि उनकी स्किल क्या है। कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, जी। माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ। डिपेंड करता है कि किसी फ्रीलांसर की स्किल क्या है। अगर स्किल कोई छोटी स्किल है तो वो काम कि $10 $20 में भी हो सकता है, लेकिन आप कोई काम बड़ा कर रहे हैं जैसे डेटा साइंस हो चुकी है तो यू कैन अर्न मोर। हम अमाउंट के ऊपर जाते हैं कि एक एवरेज फ्रीलांसर कितने अमाउंट जो है वो मंथली या ईयरली कमा सकता है? एक रफ एस्टिमेट। अराउंड $30,000 पर ईयर। अराउंड $1,000 पर ईयर। नो मोर देन दैट, 3,000। ठीक है, 1,000 to 3,000। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? उनको प्लीज़ माइक दे दीजिए। एक यहाँ पे भी इनको प्लीज़ माइक दे दीजिएगा। सेकंड माइक यहाँ पे। हाउ मच डज अ फ्रीलांसर अर्न? अस्सलाम वालेकुम सर। नाम? मोहम्मद शायान जी। सर वैसे तो जो अराउंड नॉर्मल जो होते हैं फ्रीलांसर वो तो मंथली कम से कम जो पाकिस्तानी है वो तो 5 लाख अबव भी कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ 5 लाख अबव, 5 to 6 लाख, 8 लाख तक कर लें इसको? जी 8 लाख 8 लाख तक कर लें। एनी अदर इनपुट? हाउ मच डज अ फ्रीलांसर अर्न? थैंक यू। प्लीज़ उनको माइक दीजिए, बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे। हाउ मच डज अ फ्रीलांसर अर्न? हमारे पास 5 to 8 lakhs आए हैं, दीगर हमारे पास $1,000 की एक फिगर आई है। सो हम बस एक लास्ट इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। हेलो सर, मैं कुछ फ्रीलांसर से ख़ुद फिज़िकल मिला हूँ, जस्ट लाइक एक्सट्रीम कॉमर्स हैं, इनेबलर्स हैं, तो वहाँ पे वो $80,000 भी अर्न कर रहे हैं। $18,000? $80,000। और मैं कुछ ऐसे ब्लॉगर्स को जानता हूँ और जो मेरे दोस्त भी हैं, वो एक ब्लॉग बनाते हैं और उसको कितना अमाउंट बताएं ताकि हम लोग $40,000 पे सिर्फ एक वेबसाइट फ्लिप कर देते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे भी फ्रीलांसर्स हैं। अमाउंट? $40,000। $40,000। $80,000, $40,000 इतना अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। अब हम लोग यही क्वेश्चन इसके आंसर के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अगर हम लोग अपवर्क के स्टैटिस्टिक्स देखें तो अपवर्क की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि हाईएस्ट अर्निंग फ्रीलांसर जो है वो एक डेटा एनालिस्ट होता है, और एक डेटा एनालिस्ट अपने सर्विसेज के 55 to $65 पर आवर चार्ज कर सकता है मैक्सिमम, एंड दिस कैन लीड टू द अर्निंग ऑफ $100,000। सो $1 लाख तक एक फ्रीलांसर मैक्सिमम कमा सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज एन एवरेज फैंग एम्प्लॉय अर्न्स? फैंग हम लोग कहते हैं फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी बड़ी बिग टेक कंपनीज को। सो व्हाट्स योर ओपिनियन कि हाउ मच डज अ फैंग एम्प्लॉय अर्न? अब प्लीज़ माइक को पास कीजिएगा। कौन इस पे इनपुट देना चाहेगा? लेट्स मेक इट अ बिट इंटरैक्टिव। सर हमारे माइक्स अमेजॉन आगे भी आपने एक दफ़ा बोल दिया, प्लीज़ आगे कोई भी और दो दूसरा मौका सवाल दो। पूछ नहीं रहा इस वजह से। चलिए आप एक इनपुट दे दीजिए। अमेजॉन के ऊपर जो VA की सर्विस मैं दे रहा था $300 पर मंथ मुझे पे मिल रहा था। $300? अमेजॉन एज अ VA। ठीक है, ठीक है। अमेजॉन के अंदर लेकिन वो वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट को हम लोग इधर भी माइक पास कर सकते हैं, सिर्फ वहीं पे माइक है। हाउ मच डज एन एवरेज फैंग एम्प्लॉय अर्न? फैंग एम्प्लॉयज़ फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, यहाँ पे कोई बताना चाहता है? कोई इनपुट देना चाहता है? प्लीज़ पीछे। फ्रीलांसर्स का तो हमने देख लिया, 1 लाख तक मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपवर्क, वेरी फेमस कंपनी। $120,000 to $150,000। सॉरी,
$120,000 to $150,000. $120,000 सही 7 लाख से ज़्यादा है। एक एवरेज एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाते हैं, एक्चुअल नंबर्स के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये हमारे पास मौजूद है। सो यहाँ पे एक मेन बात है, एक एवरेज गूगल का वर्कर $2 लाख से ज़्यादा कमाता है। इसके अंदर हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट पे आ जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे आ जाता है, स्वीपर्स पे आ जाते हैं। सो एक एवरेज इनकम है। इसके अंदर हाई पेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी। बट द सेकंड स्टैटिस्टिक इज़ more shocking to you because it's not shocking to me but it may be shocking to you कि एक entry level का, please note that, एक entry level का सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर वो जाता है तो उसकी बेस पे $1 लाख से ज़्यादा है। एक एंट्री लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि माइक्रोसॉफ्ट में जाता है उसकी बेस पे एक हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसर से ज़्यादा है। सो यहाँ से ये बात एक सामने आती है कि जब हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करते हैं और बिग टेक कंपनीज़ की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग इज़ जस्ट पीनट्स जब हम लोग बिग टेक को कंपेयर कर रहे हैं। सो वाई आरंट वी फोकसिंग फैंग कंपनीज़, वाई आरंट वी फोकसिंग द बिग टेक कंपनीज़? हम लोग पीनट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए क्यों अपने एम को इतना छोटा बना रहे हैं? हम लोग बिग टेक को क्यों नहीं फोकस कर रहे? हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाने के लिए क्यों रेडी नहीं हैं? हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हैं? हम लोग खुद माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ बनने के लिए क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हैं? लेट्स मूव ऑन। सो क्या फैंग कंपनीज़ में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? नो। अगर हम लोग अमेज़ॉन के स्टैटिस्टिक्स निकालें, अमेज़ॉन 2 मिलियन एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है। 2 मिलियन एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या पाकिस्तानी नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम लोग करंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तानी अभी अमेज़ॉन के अंदर रफली 1000 है। बहुत लिमिटेड हमारे नंबर्स हैं। बट अगर हम लोग इसी के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें हमारे नेबरिंग कंट्री के सिर्फ अमेज़ॉन इंडिया के ऑफिस के अंदर 1 लाख इंडियंस मौजूद हैं और अराउंड द वर्ल्ड अगर बात करें तो वो 15 to 16 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। सो वी आर सिवियरली लैकिंग है। क्या इन कंपनीज़ में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या क्या रीज़न है पाकिस्तानीज़ बिग टेक को फोकस नहीं कर रहे? क्या रीज़न है हम लोग फ्रीलांसिंग तक हमने अपने पीनट्स के ऊपर अपने आप को महदूद कर लिया है? क्या रीज़न है कि हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर अपने मंजन तो बेच रहे हैं लेकिन अमेज़ॉन से डायरेक्ट हायरिंग नहीं करवा पा रहे? क्या रीज़न है? सो हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, हम थोड़ा इसको स्पीड अप करते हैं। सो रिसेंटली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो गूगल ने कोडिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए अपने इसी अगस्त के अंदर और जब उसके रिज़ल्ट्स आए तो हमारा जीना हराम हो गया। लिटरली हमारा जीना हराम हो गया क्योंकि 3 दिन तक मुसलसल नोटिफिकेशंस आ रहे थे। 300 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसके अंदर से एक मैं भी था। हमने गूगल कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया एंड हम लोग सिंस हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर नहीं जाते, सो हम लोग बुरी तरीके से नाकाम हुए और इसके ऊपर हर मीडिया चैनल ने उसको रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने नाक कटवा दी, पाकिस्तानियों ने बुरी तरीके से जलील कर दिया और पूरे पाकिस्तान ने एज ए नेशन मिलके हमें गालियाँ दी और सलावतें सुनाई। सो इस करंट सिनेरियो को कि हम लोग 13 हमारा फर्स्ट रैंक 36 रैंक पे क्यों आ रहा है, हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं? सो अब सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं कि हाउ वी कैन मेक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। क्या हाउ वी कैन मेक दिस सिचुएशन बेटर? इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस समझना होगा एक टेक्नीशियन के दरमियान में और एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर के दरमियान में। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। लाइक हमारे पास एक ड्राइवर है, BMW का ड्राइवर है
ठीक वो भी सर्टेन सैलरी लेता होगा, और दूसरा अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, सो लाइक एक मेहरान का ड्राइवर है, वो भी सर्टेन सैलरी लेता होगा, क्योंकि दोनों ड्राइवर्स हैं, दोनों एक स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। बट ये दोनों एक BMW या मेहरान को चला रहे हैं, इन दोनों की सैलरीज का कंपैरिजन उस इंजीनियर से बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि जिसने BMW बनाई है। सो इसको आप टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, आप लोग फ्लटर सीख रहे हैं, आप लोग .NET सीख रहे हैं, आप लोग कोई भी पाइथन का फ्रेमवर्क जेंगो सीख रहे हैं, आप कोई भी दूसरे अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, सो आप लोग हमेशा अपने आप को महदूद तक रखेंगे। आप बड़ी फैंग कंपनीज़ के जो सैलरीज हैं उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। सो हाउ वी कैन मेक आवर सिचुएशन बेटर, हाउ वी कैन मेक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, तो मैं आपको सिर्फ बहुत ईजी है, मैं 3 इंग्रेडिएंट्स की आपको रेसिपी यहाँ पे देता चलूँ कि अगर तो हमें वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने हैं, अगर तो हमें अपने मुल्क की तकदीर को बदलना है, तो सिर्फ इसी रेसिपी को फॉलो हम लोग कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग बेटर हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ टेक कम्युनिटीज़। हम लोग जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स कराची चैप्टर का इनिशिएटिव लिया हुआ है, ऐसी टेक कम्युनिटीज़ को फॉलो करें, इनको ज्वाइन करके यहाँ पे टेक्नोलॉजी को शेयर करें एंड यहाँ से लर्न करें। सेकंड थिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीड कोड और इस तरीके के प्रॉब्लम, हैकर रैंक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपका इंटरव्यू ही नहीं लेंगे जब तक आप उनके कोडिंग राउंड्स को सॉल्व नहीं करते। सो लीड कोड के ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने अंदर बढ़ाएं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तो किसी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने स्टूडेंट्स को इंकरेज करें कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करें। अगर तो आप कोई दूसरे इंडिविजुअल हैं तो दूसरे लोगों को हेल्प करें। एंड थर्ड थिंग इज़ इवेंट्स लाइक दिस वन, टेक्नोलॉजी इवेंट्स, कि इसके तवज्जो से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। तो यही 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने पाकिस्तान की जो कदर है वो बढ़ा सकते हैं। सो या मैं इंसेंटिव्स की अनाउंसमेंट कर लूँ। स्टार्टिंग के अंदर भी अनाउंस किया कि MLS कराची की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। सो मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ कि जितने भी इस इवेंट के टेक कंपटीशन के विनर्स हैं, हम सब टेक कंपटीशन के विनर्स को 1 ईयर लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स दे रहे हैं। एंड दिस इज़ बिजनेस एडिशन वर्जन एंड दिस विल मेक देयर प्रोफाइल मोर इनहेंस। इनके पास लिंक्डइन लर्निंग के एक्स्ट्रा कोर्सेज होंगे एंड इट विल हेल्प यू। सेकेंडली, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स को $150 के क्लाउड क्रेडिट्स मिलेंगे ताकि आप अपने जो माइक्रोसॉफ्ट एजर को सीख सकें, क्लाउड के ऊपर अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर सकें। थर्ड थिंग, इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो आप अगर प्रोफेशनल हैं तो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से वेरीफाई करवा के इन $0 आप 1 मंथ के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजर की सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री ले सकते हैं। एंड दिस इज़ अ थिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट हेयर। अगर तो आप लोगों को कोई भी इन इंसेंटिव्स को अवेल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप एजर फॉर स्टूडेंट्स लिखेंगे। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, अपने फेवरेट सर्च इंजन में आपको वो पोर्टल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सिर्फ अपने ID कार्ड की पिक्चर लगानी है एंड आपके क्लाउड क्रेडिट्स एक्टिव हो जाएंगे। बट कोई मसला हो तो आप हमारे MLS कराची के पेजेस के ऊपर पिंग कर सकते हैं एंड आवर एम्बेसडर्स विल गाइड यू कि किस तरीके से आप क्लाउड के क्रेडिट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। सो या वी हैव एम्बेसडर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। प्लीज़ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव एम्बेसडर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। हमारे एम्बेसडर सबसे पहले तो हमारे पूरे कराची चैप्टर के लीड समीरुल्लाह हैं एंड देन हम लोग UIT यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, हम लोग UIT यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, DHS सफ़ा के अंदर हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर है हमारे एम्बेसडर्स, इकरा के अंदर सिंध मदरसुल इस्लाम एंड हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं जो आपके फोकल पर्सन हो सकते हैं फॉर रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। अगर तो आपकी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इसके अंदर मेंशन नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं
और हम आपको एम्पावर करेंगे कि आप अपने कैंपस के अंदर एम्बेसडर बन सकें। सो दैट्स इट। अगर तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।